Morning student, welcome back in this class, and this is the class 9 subject social science, and this is the chapter 4 of civics, and the topic name is electoral politics, and this is the lecture 2nd. And student, in previous lecture we have discussed about the election, the definition of election, and election is a mechanism by which people can choose their representative at regular basis and change them if they wish to do so. And in India is a representative democracy, and it is a type of democracy, it is a type of government under which people elect their representative and elected leader take decision on their behalf. Okay student, and in this chapter we will learn about the election process, different constituencies, voter list, and the procedure of general election and election of legislative assembly. Okay, so student, let's start our lecture, and today we will cover some topic. First is it good to have political competition? Means some are positive points and some are negative points in our political system, and we will discuss about the merits of political competition and demerits of political competition. And then we will learn about the election system. Election system in the procedure of election system, and we will learn about the election process, election system in general election. Okay, and then we will solve some question. That question I have assigned in previous lecture. So student, let's start our lecture. First topic is political competition. Political competition means the most obvious form is the competition among political parties. Means in political party, most obvious competition is the political competition, because every candidate win the election and form the government, and it takes the form of competition among several candidates, and candidates means those person who contest election and win the election. Some candidates win the election and some candidates lose the election, and if there is a no competition, election will become pointless. In a political competition, election will be necessary for good competition, for good government. ओके तो पॉलिटिकल कंपटीशन क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज़ में पॉलिटिकल कंपटीशन सबसे बड़ा फॉर्म है, यानी वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ में कंपटीशन होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स में आपस में कंपटीशन रहता है कि पार्टी को बनाने का, गवर्नमेंट को फॉर्म करने का। अगर हमारे इलेक्शन में कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन का कोई भी पॉइंट नहीं होगा, या कोई भी पॉइंट लेस होगी, इसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो इसलिए पॉलिटिकल कंपटीशन की क्या है, रिक्वायरमेंट होती है डेमोक्रेसी में, ताकि अच्छे से अच्छे लीडर्स को या पर्सन्स को हम क्या करें, अपने लीडर मिनिस्टर बना सकें, और वो क्या है, कंट्री को रन कर सकें। एंड नेक्स्ट इज demerits of political competition. Demerits means the negative points of political competition. Firstly, it creates a sense of disunity and party politics, and it creates a sense of disunity and factionism in every locality, and party legal allegation against each other to use dirty tricks to win the election. Due to political competition, it creates a sense of disunity, factionalism, and different parties available in political competition. Okay, and party use dirty tricks to win the election. India is a corrupted country, and many people use dirty tricks to win the election, and they used legal allegation against each party, and they use different method to win the election. They used money, they used dirty tricks to win the election. पॉलिटिकल कंपटीशन में जब कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा क्या होती है, आपस में डिस्क्रिमिनेट होना स्टार्ट होता है, डिसयूनिटी होती है। एक ही जगह पे एरिया में काफ़ी सारी पार्टी के मेंबर्स वहाँ रहते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, पार्टी पॉलिटिक्स हो जाती है, यानी कि पॉलिटिक्स के नाम पे उन पर डिफरेंट पार्टी फॉर्म्ड हो जाती हैं, और पार्टी जो लीडर हैं अपनी पार्टी को विन करने के लिए गलत तरीके के भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, लीगल एलिगेशन लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। काफ़ी सारे
गलत चीज़ों का यूज़ करते हैं, डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, मनी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं. नेक्स्ट, प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड. Every candidate to win the election, and due to pressure to win electoral fight they do not follow and they do not allow long term policy to be formulated. क्योंकि लीडर्स के या कैंडिडेट्स के और बहुत सारा प्रेशर होता है, और प्रेशर और वो क्या है, अपनी पार्टी को विन करने, अपनी पार्टी को वॉन करने के लिए वो क्या करते हैं, कई बार डर्टी ट्रिक्स का भी यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उनको क्या है, वो सही तरीके से फॉर्मुलेटेड नहीं कर पाते. कई लोग क्या है, जैसे कोई लोग क्या है, मनी के चक्कर में यानी क्या करप्टेड होते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने पावर को लाने के लिए क्या है, गलत लोगों को क्या है, वोट देते हैं, जिसकी वजह से जो कंट्री में लॉन्ग टर्म पॉलिसी वो फॉर्मुलेटेड नहीं हो पाती, और देश की जो देश का कंट्रोल है वो कई बार क्या है, वो कई बार करप्टेड लीडर के हाथ में भी चला जाता है. तो इसी वजह से ये सारी क्या है, डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन. नेक्स्ट, some other is merit of electoral competition. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated by only by desire to serve them. But in an electoral competition, some are positive points, such as in ideal world, all political leaders know what is good. पॉलिटिकल लीडर्स को पता है कि क्या लोगों के लिए क्या बेटर है, सोशल वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए, और वो उनको क्या है, लोगों के वेलफेयर को काम करने के उनको क्या करती है, मोटिवेटेड करती है. सभी जो कंट्री में सभी लीडर हैं वो केवल करप्टेड ना हो के, उनमें गुड पॉइंट्स भी हैं. पॉलिटिकल लीडर वो बहुत अच्छे हैं जो देश के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं. उनको पता है कि लोगों को लिए क्या काम, व्हाट इज़ गुड, कि लोगों के लिए क्या बेटर है, कैसे उनको वेलफेयर करना है, और वो उनके काम करने की जो इनकी इच्छा होती है, वो कॉपरेशन चाहते हैं, उनके खुद के अंदर जो मोटिवेशन होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपनी पार्टीज़ बनाते हैं, और अपनी पार्टीज़ बनाते हैं, देश का वेलफेयर करते हैं. Second, our constitution maker opted for free competition in election as the way to select our future, because this system works better in the long run. You know, our constitution formed on 26 November 1949, but it was applicable on 26 January 1950. And our constitution know about the future of election system. And you know, in constitution adopted free competition because because election system works better in the long run. जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो मेकर्स के सामने भी उन्होंने ये सोचा था कि फ्यूचर में कैसी प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन क्या है, और सभी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में सबसे जो बेटर है वो है इलेक्शन, जिसमें क्या है, हम इलेक्शन के माध्यम से या पॉलिटिकल कंपटीशन के माध्यम से हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक क्या है, अच्छा काम कर सकते हैं. और जो लीडर अच्छा वर्क करेगा वो क्या करेगा, अच्छा लीडर बनेगा, अच्छा मिनिस्टर बनेगा, और वही पार्टी फिर क्या होगी, फॉर्म होगी. तो ये जो सारी बातें, ये क्या है, मेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन. एंड पॉलिटिकल लीडर आर मोटिवेटेड बाय ए डिजायर टू एडवांस इन देयर पॉलिटिकल कैरियर. कैंडिडेट्स बिकेम मिनिस्टर एंड दे वांट टू enhance their political career, and they want to work according to the people, and they are motivated by the desire of the people, and they wanted to enhance their political career, and they want to remain in power or get power and position for themselves, for which they can compete with other political parties. बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो पावर में आना चाहते हैं, पावर में आके मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और वो अपने पोजीशन में वो क्या करते हैं, पोजीशन लेना चाहते हैं. तो इसीलिए वो क्या है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से compete करते हैं, और वो बेटर से बेटर सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि जो लीडर अच्छा वर्क करेगा, सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करेगा, उसी के क्या करेगा, आगे इलेक्शन में नॉमिनेट किया जाता है, आगे फिर वो इसको मिनिस्टर बनाया जाता है, जिसकी वजह से फिर वही जो मिनिस्टर है फिर अपनी गवर्नमेंट क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन. ओके, सम आर नेगेटिव पॉइंट्स एंड some are negative points of our political competition, such as demerits that it creates a sense of disunity and factionism in every locality, and many political parties use dirty tricks to win the election. And merits, political leaders are motivated by the desire to advance political party, and they want to come in power and
retain position for themselves. So they do their best to win the heart of people. इसलिए वो वही काम ज़्यादा करते हैं, वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्या है वोट ले सकें और वो मिनिस्टर बन सकें और क्या है कंट्री को रन कर सकें. नेक्स्ट, पॉलिटिकल लीडर्स बी मेड अकाउंटेबल. पॉलिटिकल लीडर्स को हम कैसे अकाउंटेबल कर सकते हैं, कैसे जिम्मेवार और भी बना सकते हैं. It can be done by setting up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing goods for the sake of people. It can only possible when some provision for political leader, and when political leader are doing good job and they are rewarded for serving the people and punished for not doing goods for the sake of people. If any leader are corrupted, then we punished for not doing work for the sake of people. पॉलिटिकल लीडर्स को अकाउंटेबल यानी इसको और भी ज़्यादा हम लीडर्स हैं जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं उनको और भी जिम्मेदारी उनको पोजीशन में कैसे दे सकते हैं कि कोई लीडर अगर अपना वर्क बहुत बेटर करता है तो पॉलिटिकल लीडर्स को हम उनको रिवार्ड दे सकते हैं, कोई रिवार्ड प्रोवाइड किया जा सकता है उनको जो वर्क करते हैं सोशल वेलफेयर के, उनके लिए बहुत सारे जैसे जो सोशल वेलफेयर उनको बहुत सारे रिवार्डेड दिए जाते हैं, बहुत सारे अवार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी वजह से उनको मोटिवेशन मिलती है और वो सोशल वेलफेयर के लिए क्या करते हैं वर्क करते हैं. और इसके अलावा जो आपके करप्टेड लीडर हैं जो लोगों के लिए वर्क नहीं करते, सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करते, जो करप्शन फैलाते हैं उनके लिए क्या है उनको पनिश किया जाता है या उनको अपनी सीट से क्या कर दिया हटा दिया जाता है. तो इस वजह से हम पॉलिटिकल लीडर्स को और भी ज़्यादा अकाउंटेबल बना सकते हैं. जब हम किसी लीडर को उसके वर्क के लिए रिवार्ड करते हैं तो वो और भी उसको मोटिवेशन मिलती है जिसकी वजह से वो और भी क्या है कंट्री के लिए सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करता है. नेक्स्ट, they know that if they raise issue that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next election. And they know मीन्स पॉलिटिकल लीडर नो इफ़ दे रेज इशू, अगर वो किसी इशू को क्या उठाएंगे सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे तो लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी होगी एंड दे विल चांस टू विक्ट्री विल इन नेक्स्ट इलेक्शन. अगर कोई भी लीडर है वो क्या है अपने टाइम पीरियड में अगर वो अच्छा काम करता है तो आने वाले टाइम में उसको फिर दोबारा से वोट क्या होते हैं लोग देते हैं और आगे नेक्स्ट इलेक्शन में उसको क्या होती हैं उनको उसको जीतने की भी क्या होती है संभावना होती है. इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर विद देयर वर्क एज दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन. अगर वो पीपल की नेसेसरी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे, सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे तो उनको पता है कि आने वाले टाइम में वो क्या है उनको वोटिंग से क्या है उनको हटा भी दिया जाएगा और वो दोबारा नहीं जीत पाएंगे, दोबारा पावर में नहीं आ पाएंगे. तो ये जो सारी बातें हैं ये इसी वजह से हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन को हेल्थी बनाने के लिए हमें क्या है जो भी लीडर बहुत अच्छा वर्क करता है उसको अवार्ड दिए जाने चाहिए और जो वर्क कम नहीं करता या करप्टेड है उसको क्या है पनिश करना चाहिए, उसको पावर से हटा देना चाहिए. क्योंकि जो लीडर अच्छा वर्क करेगा उसको नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में विन करने का मौका होता है और जो वर्क नहीं करता उसको फिर क्या है वहाँ पावर में से हटा दिया जाता है. तो दीज आर द अकाउंटेबल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स. ओके, एंड नेक्स्ट, इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया एंड यू नो election system in India. Lok Sabha means general election. Lok Sabha means the head of the Lok Sabha is called Prime Minister, and Vidhan Sabha. Lok Sabha is the central election and Vidhan Sabha is a state election are held regularly after every 5 years. लोक सभा के जो होते हैं इलेक्शन जनरल इलेक्शंस होते हैं. जो लोक सभा के जो मेंबर्स के जो हेड होते हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं. विधानसभा के जो MLAs हैं वो चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं और जो इलेक्शन होते हैं वो 5 साल के बाद होते हैं. आफ्टर 5 ईयर द टर्म ऑफ ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंट कम्स टू एंड. और 5 साल के बाद वो टर्म बिल्कुल उनका क्या होता है ख़त्म हो जाता है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 5 साल की बनाई जाती है और 5 साल के बाद कंप्लीट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है उनकी जो पावर उनका जो टर्म है वो क्या होते हैं ख़त्म हो जाते हैं. तो स्टूडेंट लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा है आपको पता है लेजिस्लेटिव में 3 पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा इज कॉल्ड लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस. एंड लोकसभा जो है वो आपके जनरल इलेक्शन होते हैं. लोकसभा के जो मेंबर के हेड होते हैं उनको जो मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो इनके हेड होते हैं उनको वो जो हेड होते हैं वो बनाते हैं
प्राइम मिनिस्टर। और जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो जो होते हैं स्टेट के होते हैं। स्टेट के हर स्टेट में अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और वहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो अपने चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं। और लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन वो हर 5 साल के बाद होते हैं और उसके बाद 5 साल कंप्लीट होने के बाद उनकी पावर अपने आप ही खत्म हो जाती है। एंड लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व, इनको खत्म भी किया जा सकता है लोकसभा को किसी भी समय, विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व। 5 साल ये अपने आप ही क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। एंड इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी एट द सेम टाइम आइदर ऑन द सेम डे और विद इन ए फ्यू डेज, दिस इज ए कॉल्ड ए जनरल इलेक्शन। बेटा इलेक्शंस होते हैं 2 टाइप्स के, जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन। जब इलेक्शन आपके एक ही जब इलेक्शंस होते हैं, जो जनरल इलेक्शन है वो क्या होते हैं आपके सेम टाइम में होते हैं, यानी पूरे जो आपके हैं इंडिया में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन होते हैं सेम टाइम होते हैं, या फिर क्या होते हैं कुछ दिनों के गैप में या फिर जनरल इलेक्शन होते हैं और बाद में जो उनको फिर कंबाइन करके उनका फिर क्या होता है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि आपके प्रेसिडेंट, आपके जो प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन होते हैं वो आपके जनरल इलेक्शन के थ्रू ही हम प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं इलेक्ट करते हैं। पहले अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो सारे मेंबर मिलके अपना फिर हेड बनाते हैं और हेड को ही फिर क्या कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। तो दिस इज ए कॉल्ड ए जनरल इलेक्शन एंड इट इज कंडक्ट आफ्टर एवरी 5 years. And sometime election are held only for one constituency to fill the vacancy by the death or resignation of a member. This is called by election. Sometime election are held for fill of one vacancy. देखिए बेटा इसमें क्या है कि कहीं इलेक्शन हो गए, जनरल इलेक्शन हो गए, सीट फिल हो गई, लेकिन कहीं किसी लीडर की डेथ हो जाती है या कोई लीडर अपनी पावर को छोड़ देता है या अपने पावर से रेजिग्नेशन दे देता है, तो वहाँ पे जब सीट वैकेंट हो जाती है तो सीट को फिल करने के लिए जो इलेक्शन किए जाते हैं उसको कहा जाता है बाय इलेक्शन। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। ओके, तो सम इलेक्शन हैव 2 टाइप्स, इलेक्शन, जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। ओके, एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रल सिस्टम। इलेक्ट्रल जो सिस्टम है इंडिया में उसमें सबसे पहले क्या था, इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द total part of the country is divided into different electoral constituency. Then in this system, firstly we will decide the country into different constituencies according to their population, and then we will provide some seats for SC and scheduled caste, and then election commission prepared voter list, then nomination of candidates and election campaigning and polling and counting of voter. These are the process of electoral system. And student, today we will discuss about electoral constituencies. Electoral constituencies. Constituency means the entire country is divided into different areas with a body of registered voter for the purpose of election. इलेक्ट्रो कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है बेटा इसमें एरिया को, यानी एक एरिया को पहले क्या है कंट्री में जो है सभी एरियाज को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको क्या है डिवाइड कर दिया जाता है विद बॉडी रजिस्टर, और वहाँ की वोटर की क्या है लिस्ट बनाई जाती है, उनके वोटर्स के रजिस्ट्रेशन किया जाता है कि इस एरिया में कितने वोटर्स हैं, और इसी वजह से कंट्री को पूरे क्या है अलग अलग एरियाज में क्या है डिवाइड कर दिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रल। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी। मींस क्योंकि इलेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूंसी के बिहाफ पे भी क्या इलेक्शन किया जाता है, और जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है वो वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होती बनाई जाती है। एंड द लोकसभा इलेक्शन आर कंट्री इज डिवाइडेड फॉर 543 कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी लोकसभा में जो हमारी जो सीट्स हैं, यानी जो जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, उसमें टोटल सीट हैं 543 जो इलेक्टेड हैं, यानी इनके लिए वोट दिए जाते हैं 543। पूरे इंडिया को 543 में क्या है डिवाइड कर दिया जाता है, और वो वहाँ की स्टेट जैसे कि 28 स्टेट है, 28 स्टेट में 543 सीट्स उनको क्या है अलॉट की जाती है, डिवाइड कर दिया जाता है। और टोटल जो सीट्स हैं वो लोकसभा 545 हैं, 2 हैं वो एंग्लो इंडियंस हैं जो क्या होते हैं प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है, 545 सीट्स हैं, लेकिन इलेक्टेड जो है कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनती है वो है 543। And the representative elected from each constituency is called a member of parliament or an MP.
जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हेड बनते हैं, उनको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो फिर उनके हेड होते हैं वो फिर बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। हर 5 साल के बाद लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, और लोकसभा के जैसे कि अभी बीजेपी की सरकार है, तो लोकसभा में यहाँ पे जिसको भी ज़्यादा मेजोरिटी आती है, यानी कॉन्स्टिट्यूंसी में 543 यानी मिड यानी 50% से सीट जिसकी ज़्यादा आती है वही क्या होती है, पार्टी विन करती है। एंड द रिप्रेजेंटेटिव कॉल, और जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, और जो आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शन है उसमें हर एक जो भी अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, ओके, एवरी पर्सन और एवरी वोट शुड हैव इक्वल वोट। और डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो भी 18 ईयर से अबव है उसको क्या है, वोट देने की प्रोविज़न है, और वो क्या है, वोट में उसको क्या इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इक्वल वैल्यू की जाती है। तो ये जो है ये है लोकसभा के जो मेंबर है, इनको कहा इन लोकसभा, ये जनरल इलेक्शन है हमारे। लोकसभा में जो टोटल सीट्स हैं वो है 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जो 2 सीट्स होती हैं वो होती हैं एंग्लो इंडियंस की होती हैं, ओके। और इनके जो मेंबर को कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड ईच स्टेट, जैसे ही हमने ये कंट्री का किया वैसे हम स्टेट में होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होते हैं। हर स्टेट के इलेक्शंस होते हैं जो स्टेट के काम, जो स्टेट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और जो स्टेट में जो MLAs होते हैं वो फिर क्या आते हैं, चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं। एंड ईच स्टेट इज आल्सो डिवाइड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंट, जो यानी स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी क्या है डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कल कि हरियाणा में जो स्टेट असेंबली सीट्स हैं वो आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं वो है 90, और 90 में भी क्या है अलग अलग हैं। जैसे कि हरियाणा में हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो भी इसमें भी क्या है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। 22 डिस्ट्रिक्ट्स में से जो भी पार्टी विन करती है फिर उन्हीं की पार्टी के मेंबर में से ही उनमें हेड बनाया जाता है, उसको फिर हेड में से भी चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट किया जाता है। और जो स्टेट असेंबली के जो मेंबर उनको कहा जाता है MLA, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ MLA। स्टूडेंट, वन थिंग रिमेंबर, जनरल इलेक्शन, ओके, लोकसभा, head of the Lok Sabha is called Prime Minister, and head of the Legislative Assembly in State Assembly is also called Chief Minister. At पंचायती एंड द म्यूनसिपल इलेक्शन ईच विलेज, जैसे हमने कंट्री का किया कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर देते हैं, स्टेट में हम कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड करते हैं, वैसे सेम प्रोसीजर पंचायती यानी गांव में जो पंचायती सिस्टम यानी कि आपका लोअर लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं पंचायती और म्यूनसिपल इलेक्शन, ईच विलेज और टाउन डिवाइड टू सेवरल वार्ड्स। और वहाँ पे हम जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, हम कंट्री में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी करते हैं, वैसे ही विलेजेस में हम जो अलग अलग एरिया में जो डिवाइड करते हैं तो उनको कहा जाता है वार्ड कहा जाता है। वार्ड के अकॉर्डिंग क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है, उनको वार्ड कहा जाता है। एंड ईच वार्ड सिलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी, और हर एक वार्ड्स में से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक ही मेंबर को क्या होता है, चुना जाता है। बाद में फिर वो क्या बनते हैं, वहाँ के लीडर्स बनते हैं, यानी कि वहाँ के हेड बनाए जाते हैं। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें क्या है, entire country is divided into fixed electoral area with a body of registered voter, okay। टोटल जो सीट है आपकी लोकसभा में इलेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन, हर 5 साल के बाद किए जाते हैं। बाई इलेक्शन जब किसी मिनिस्टर की डेथ हो जाती है और सीट वैकेंट हो जाती है तो वहाँ पे एक सीट के लिए दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन। टोटल जो आपकी लोकसभा में सीट है 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है टोटल अपने लोकसभा में, और पूरी कंट्री को 543 सीट्स में क्या होता है, उनको कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, ओके। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। एंड स्टूडेंट, टुडे योर होमवर्क सॉल्यूशंस। What is the principle of universal adult franchise? First is, each citizen of India who is 18 years of age or above has the right to vote without any discrimination of caste, race, color and religion, etc. Question number 2, what is an election? Why do we need election? Election, it is a mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them if they wish to do so.
And need of election are necessary for representative democracy. It helps the people to choose their representative, and election help the people to change their representative if they don't work as per their wishes. And question number third, what is representative democracy? It is a type of government under which people elect leader who take decision on their behalf. And question number fourth, mention any two groups or community for whom reservation has been provided by the government. And you know, scheduled caste and scheduled tribes are two groups of community. What are the minimum conditions for a democratic election? First, everyone should be able to choose, and everyone should have one vote, and every vote have equal value on the basis of universal franchise. Second, there should be parties and candidate to choose from, freedom to contest election and a wide choice for people. Third, election must be held at regular basis. Fourth, election should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. Question number 6. What choices are given to a voter during election? First is they choose who will make laws for them. Point number 2, they can choose who will form the government and take major decision, and they can choose the party whose policy will guide the government and law making. And question number 7, what is EVM? EVM is electronic voting machine which are used to record votes. And student, today your homework, revise chapter. Okay, and find out following question. First, how many constituencies do we have for Lok Sabha? Question number 2, what are by-election? Question number 3, write any two demerits of electoral competition. And question number 4, who is an MP? Question number 5, what is the minimum age of voting in India? And 6th, how can political leader be made accountable to the people? Student, all question done in your fair notebook. Properly mention your name, roll number, section, and send me on my WhatsApp. Okay, and do your work proper, neat and clean. Thank you.